Good morning to all of my friends. You are watching my YouTube channel Study IQ Law. I am discussing about bumper vacancy of Supreme Court of India Junior Court Assistant. Total post 241 and gross salary rupees 70,000 40 rupees. This is a good salary package for Supreme Court of India Junior Court Assistant. Please watching this video till end. Let's start. Supreme Court of India advertisement. All applications are invited from Indian citizens who fulfill the following essential qualification and other eligibility conditions as on 8/3/2025 for preparation of a panel for filling up to 241 vacancies for the post of junior course assistant. Group B non-gazetted places in level 6 of pay matrix with initial basic pay of rupees 35,400. The approximate gross salary as per existing rate of allowance including HRA comes to rupees 72,040 per month. Pre-revised pay scale PB2 with grade pay of rupees 4,200. तो आप देख रहे हैं इसमें आपको काफ़ी अच्छी सैलरी मिल रही है। 241 वैकेंसी है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की, तो इसको आप ज़रूर भरिए। कंप्लीटिंग योर एप्लीकेशन फ्रॉम टुडे। द नंबर ऑफ वैकेंसीज is tentative and subject to change, that is increase or decrease due to administrative reasons. मीन्स नंबर ऑफ वैकेंसी घटाई बढ़ाई जा सकती है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से। और इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपके 34 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर में आपकी हैबिट होनी चाहिए, तो आपको कंप्यूटर का अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। एज रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट्स शुड नॉट बी बिलो 18 ईयर्स एंड अबव 30 ईयर्स ऑफ एज on 8/3/2025. Usually relaxation in age will be admissible to SC, ST, OBC, differential abled, ex-servicemen and dependents of freedom fighter as per extant government rules. There will be no upper age limit for departmental candidates of the registry of Supreme Court. However, no relaxation in age will be allowed to the candidates working इन अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल DTC। इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है जो भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, चाहे SC, ST, OBC हो, डिफरेंशियल एबल्ड हो, एक्स सर्विसमैन हो, फ्रीडम फाइटर हो, उन सबों को छूट मिलेगी। और गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंटल हैं इनके लिए कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है। रिजर्वेशन is direct requirement for the candidate belonging to the scheduled caste, scheduled tribal and differential able shall be in accordance with the rules, ordered and notifications issued from the time to time by the government of India in respect of post carrying the pay scale. The reservation direct requirement जो है कैंडिडेट बिलोंगिंग जो भी बिलोंग करते हैं SC, ST, OBC जो रूल्स के होते हैं डिफरेंशियल लेवल के होते हैं, वो सबों के लिए सब चीज़ें रूल्स बनाई हैं corresponding to the pay scale prescribed for the post of junior court assistant, subject to such modification, variation or exception as the chief justice may from time to time. जो चीफ जस्टिस हैं टाइम टू टाइम उसके लिए वेरिएशन मॉडिफिकेशन जो होगा वो देते रहेंगे। रिजर्वेशन फॉर डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स शैल बी इन अकॉर्डिंग विद द ऑर्डर इशूड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलेगा उनको फ्रीडम फाइटर को। सीम ऑफ एग्जामिनेशन, द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर इन द टेस्ट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। फर्स्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर with multiple choice answer containing 100 questions, consisted of 50 in general English questions including comprehension, 25 general aptitude questions and 25 general knowledge questions। 2 hours का पेपर है आपका।
सेकेंड ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट 25 क्वेश्चन होंगे इसमें। थर्ड है टाइपिंग इंग्लिश टेस्ट ऑन कंप्यूटर विथ मिनिमम स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, मिस्टेक्स अलाउड अप टू 3% ऑफ टोटल वर्ड्स टू बी टाइप्ड। 10 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, 3% का आपको मिस्टेक अलाउड किया जाएगा। फोर्थ है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज प्रिसाइजिंग राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग 2 आवर्स। 2 आवर्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, इसमें इंग्लिश का लैंग्वेज है। द कैंडिडेट्स who qualify in the objective type written test and objective type computer knowledge test will only be called for typing test on computer and descriptive test, and those who qualify the said test will be required to appear for an interview before an interview board and qualify the interview by securing minimum qualifying marks. Number of candidates to be called for interview shall not exceed the ratio 1 to ratio 3 candidates against 1 vacancy, subject to availability of candidates who would be qualified on the basis of above test. After qualifying in prescribed test and interview, the selected candidate will be impaled in the order of merit for appointment as junior court assistant. तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें आप क्वालिफाई होंगे तो उसके बाद टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा, कॉम्प्रिहेंसिव के लिए बुलाया जाएगा। The candidate may note that mere placement in panel does not confer any right on the candidate to claim appointment for the post of junior court assistant. इसमें 1 to 3 का रेशियो दिया गया है, उसमें आपको 3 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। द टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 128 टेस्ट सेंटर इन 28 स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो इसमें 128 सेंटर दिए हुए हैं 28 स्टेट्स में। Registration of an application, payment of fee. Eligible candidates are required to apply online, for which the link will be provided through Supreme Court website www.sci.gov.in sci.gov.in या वेबसाइट पे जाके आपको इसको करना है, फॉर्म फिलअप करना है। The application will be accepted through online registration only, which is likely to start from 5 to 2025. Candidates will be required to pay non-refundable application। non-refundable है 1000 फॉर जनरल ओबीसी के लिए है और 250 SC/ST एक्स सर्विसमैन डिफरेंशियल एबल्ड फ्रीडम फाइटर्स के लिए, प्लस बैंक चार्जेस थ्रो ऑनलाइन मोड ओनली। फी shall not be accepted in any other form. No postal application shall be accepted. कोई पोस्टल एप्लीकेशन एक्सेप्टेड नहीं है। द फी shall be paid online through पेमेंट गेटवे प्रोवाइड बाय यूको बैंक के प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन पेमेंट के लिए। स्टार्टिंग क्लोजिंग डेट, तो आपका स्टार्टिंग 5 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और 8 मार्च तक आपका क्लोजिंग है। जनरल का इंस्ट्रक्शन है, द कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्स असिस्टेंट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द सेड पोस्ट देयर admission at all stages of examination with typing computer test and interview for which they are admitted by the registry will be purely provisional subject to and their satisfying the prescribed eligibility candidates by way of furnishing documentary proof in support thereof, and all the required document for eligible for his her candidature for the said post will be checked at the time of interview। इंटरव्यू के पहले आपको सारा कुछ चेक कर लेना है, डॉक्यूमेंट्री सब कुछ ओके है। ये ऑन वेरिफिकेशन एट एनी टाइम बिफोर और आफ्टर, तो आपको सब कुछ चेक कर लेना है इंटरव्यू के पहले, सब कुछ डॉक्यूमेंट्री आपका सब कुछ ओके होना चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ हिज हर recent photograph signature and required document while submitting the online application form in the according with the instruction display on the link provided for the purpose candidates to ensure that the particular filed in the online application। तो इस तरीके से आपको सब कुछ चेक करते हुए भरना है। The candidate shall be required to fill up the required data in the application and make payment of fee online। तो इस तरीके से आप डाटा फिल करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट विल बी एबल टू प्रीव्यू कर लीजिए और उसके बाद उसकी हार्ड कॉपी अपना रख लीजिए। उसको आपको सेंड नहीं करना है रजिस्ट्री ऑफिस में, रजिस्ट्री नहीं करनी है। द कैंडिडेट शुड रिटर्न हिज हर एप्लीकेशन नंबर केयरफुली फॉर जनरेशन ऑफ एडमिट कार्ड। आपको
एडमिट कार्ड आपको जनरेशन करना है, आपको SMS और के द्वारा नहीं मिलेगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट वेबसाइट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट लिंक। टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना है। इन केस ऑफ कैंडिडेट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन शुड नॉट बी मोर देन, इसमें आपको जैसे एक से ज़्यादा आप एप्लीकेशन आप भर देते हैं और पेमेंट कर देते हैं तो उसका कोई रिफंडेबल आपको नहीं मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट फी once paid will not be refundable any circumstance even in case where fee more than one application। वन नेम एंड डेट ऑफ बर्थ इंटर्ड इन द हाई स्कूल सर्टिफिकेट 10th बोर्ड। जो भी आपका नेम भरा जाएगा तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरा जाएगा। तो आप सब कुछ चेक करने के बाद ही फॉर्म को इंटर कर लिएगा, एप्लीकेशन को फिलअप कर लिएगा, सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखिएगा। पेनल्टी फॉर मिसकंडक्ट इन द एग्जामिनेशन, an application which or has been declared guilty of impersonation or of submitting fabrication documentation। जब ये आपने गलत इंफॉर्मेशन दिया होगा तो उसके लिए आपको क्रिमिनल प्रोसीजर होगा, तो उसमें आपको पेनल्टी हो सकती है, इसलिए ध्यान से फॉर्म को फिलअप करिएगा। नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ कैटेगरी फाइल्ड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी इंटरटेन्ड। कोई भी आपको फिर चेंज करने का ऑप्शन नहीं आएगा, इसलिए ध्यानपूर्वक भरिएगा सब कुछ। एप्लीकेशन विच नॉट बी कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरीली रिजेक्टेड। यदि एप्लीकेशन में कोई मिस्टेक आएगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी और नो TADA आपको कोई भी TADA नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड कोई आपको भेजा नहीं जाएगा बाई पोस्ट, आपको डाउनलोड करना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे www.sci.gov.in वेबसाइट पे आपको इसको फिल करना है। इसके जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी विल भी लिखा हुआ है इसमें साफ साफ, वो आपको ईमेल और SMS के थ्रू आपको सूचना दे दी जाएगी टाइम टू टाइम कब आपका एडमिट कार्ड आ रहा है कब नहीं आ रहा है। और यदि आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं बैंक में PSU में तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC आपको ले आकर आपको देना होगा। रजिस्ट्री रजिस्ट्रेशन इट्स राइट टू शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट इन एनी मैनर एज में बी कंसिडर अप्रोप्रिएट विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो अथॉरिटी तो दी जाएगी रजिस्ट्री वाले विदाउट इशूइंग एनी नोटिस। तो इस तरीके से रहा आपका वैकेंसी का, और एनेक्सर है ये 128 सिटी है और 28 स्टेट्स का है टोटल। तो आप देख सकते हैं सारा डिटेल इसमें दे रखा मेंशन कर रखा है। बिहार का हो गया, उड़ीसा का हो गया, इसमें झारखंड है, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम का, मेघालय का, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान का हो गया, हरियाणा का हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इस तरीके से है। यदि वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह की वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।